Hello everybody, very good evening. Welcome to the 60 Minutes English for Hindi Speaker Show. The topic of today's session is how to stay motivated. After attending this session, you will never get demotivated. Just watch till the end, don't live in the middle. In the last session, we learned about one of our feelings. The topic of the last session was feel the fear and do it anyway. Feel the fear and do it anyway. So today our session is again about one of the feelings. Yes, the motivation is something just like our feelings, and it doesn't stay long. All our feelings are temporary. Sometimes we feel happy, we feel sad, we feel angry, we feel motivated, sometimes we feel demotivated. So it's one of our feelings. Motivation is a kind of feeling that doesn't stay long. ज़्यादा देर तक नहीं चलता है. We get motivated and after some time something bad happens with us and we lose all our motivation. I have seen people saying this. मैंने लोगों को ये बोलते हुए सुना है. It's one of the biggest problem. मोटिवेशन के बारे में लोगों की सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सर हम इतना मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हैं या फिर हम इतना मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ लेते हैं, मूवीज़ देख लेते हैं, कोई अच्छा बहुत बढ़िया मोटिवेशनल मूवी देख लिया, जैसे मिल्खा सिंह की मूवी देख ली या किसी की कहानी सुन ली या कोई थॉट आपने पढ़ लिया, यू फील मोटिवेटेड, बहुत मोटिवेटेड फील करते हो, यू फील लाइक अ वॉरियर. वंस यू कम फ्रॉम दैट मूवी, व्हेन यू लिसन अ मोटिवेशनल सॉन्ग, you feel motivated, you have like high energy that time and you are like a warrior. आप एक warrior जैसा महसूस करते हो. But when you come back, when you just after listening to that whatever you are listening, after listening to the song, after watching that movie, after listening to the motivational speech, after reading a motivational thought, you feel motivation. But after some time that motivation just it washes away, it drowns away, कहीं बह जाता है. It happens with everyone, let me tell you. I have seen many people saying this and I have seen hundreds of sessions on this कि motivation होता तो है. When you attend a motivational speech, you feel very much motivated, and end of the show or after going home, after taking a nice sleep, the morning you wake up and you lose all your motivation. You all are busy with your daily routine life and you forget all your motivation. Why this happens? Today I am going to answer this question कि ऐसा क्यों होता है? Why this happens with everybody? Let me tell you, it happens with everyone. Everyone has the feelings. You also have the feelings. I also have the feeling. Everybody in the world, there is nobody in the world who never feels demotivated. Let me tell you, everybody feels motivated at some time and they lose their motivation the next time. So why this happens? The reason behind it is that motivation is a kind of feeling. Motivation एक प्रकार की feeling है जो हर किसी के अंदर temporary, थोड़े देर के लिए रहेगी, थोड़े समय के लिए रहेगी. After some time you will not feel motivated, you will lose all your motivation. And there are ways, कुछ तरीके हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा. I will share some of the ways how to stay motivated always. As it is a feeling, temporarily रहेगा. आप कोई thought पढ़ोगे, आप कोई movie देख के आओगे, या फिर आप कोई किताब पढ़ लोगे, या फिर आप किसी की story सुन लोगे, तो थोड़ी देर के लिए रहेगा, बाद में वो बह जाएगा. सो अब उसको कैसे हमेशा रखना है, वो मोटिवेशन आपके अंदर कैसे रखना है हमेशा. हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज. द टॉपिक ऑफ द स्पीच इज डोंट गो अवे, कीप वॉचिंग टिल द एंड. सो वी आर ऑल समटाइम्स मोटिवेटेड, वी आर ऑल समटाइम्स demotivated. Even the greatest motivators, the people who motivate others, they also feel demotivated. Go and ask them whether they feel demotivated. Now see, you can see that today I am sitting here, I am delivering a speech in front of you, I am just hosting this live session, and my intentions are to motivate others. And let me tell you, see, this is the biggest truth. I am telling you, I motivate people, and I also, this is the fact, honestly speaking, I also feel demotivated. Yeah, people don't see, people don't know. Nobody knows that. I never show that I feel demotivated. The fact is, this is the fact I'm telling you today. Every motivator in the world feels demotivated sometimes. There is nobody in the world who is permanently motivated, because it's a feeling. It's a temporary feeling. And it's just like fire. आग की तरह है. जैसे हम घर में, like for example, चूल्हे के ऊपर आप खाना बना रहे हो तो आपको उसमें लकड़ी डालते रहना होगा. इफ़ यू डोंट ऐड फ्यूल टू इट, अगर उसमें आप फ्यूल नहीं डालोगे तो वो थोड़ी देर बाद बुझ जाएगा. द सेम वे, इफ़ यू वांट टू स्टे मोटिवेटेड, वन ऑफ द सीक्रेट्स इज you need to keep adding the fuel to the fire, keep the fire burning. उस आग को जलता हुआ रखना तो you need to keep adding fuel to it, otherwise after some time it will go off, थोड़ी देर बाद वो बंद हो जाएगी.
मोटिवेशन एक आग है, और एक बहुत बड़ी पावर मोटिवेशन के अंदर, आई एम टेलिंग यू, मोटिवेशन एक, जब आपके अंदर मोटिवेशन होता है, व्हेन यू आर मोटिवेटेड, आई टेल यू, यू हैव द पावर ऑफ डूइंग एनीथिंग इन द वर्ल्ड। जिस वक्त, जिस पल आप मोटिवेटेड हो, उस वक्त आप दुनिया की कोई भी चीज कर जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस वक्त आपको दुनिया की कोई चीज करने को कहा जाएगा, उस वक्त आपके अंदर मोटिवेशन नहीं रहेगा। जब मोटिवेशन है तब कुछ भी कर सकते हो। व्हेन यू आर मोटिवेटेड, यू हैव इमेंस पावर इन यू, आपके अंदर बहुत सारी पावर होती है, आप कुछ भी कर सकते हो व्हेन यू आर मोटिवेटेड। बट द प्रॉब्लम इज, जब आपको कोई चीज करनी होती है, उस वक्त आपका मोटिवेशन नहीं होता आपके साथ। आप मोटिवेटेड रहते हो एक कॉमन नॉर्मल सी लाइफ में, किसी दिन हमने कोई मूवी देख लिया, हम मोटिवेटेड हो गए, लेकिन उस दिन कुछ करने को होता ही नहीं है हमारे पास। और जिस दिन कुछ करने को होता है तो मोटिवेशन नहीं है, एंड एट दैट टाइम इवन इफ यू गो एंड वॉच अ मूवी, इट डजंट वर्क फॉर यू। उस वक्त जाके आप मोटिवेशन लेने की कोशिश भी करते हो ना, तो समय पे कुएं खोदने जैसा हो जाएगा। इवन इफ यू ट्राई टू गेट मोटिवेटेड फ्रॉम समवन, नथिंग हेल्प्स यू। सो here are some solutions I'm going to tell you how to stay motivated always. Let's move ahead. Motivation is classified. First of all, we need to understand the types of motivation. The types of motivation. We need to understand the types of motivation. There are many types. Out of them, two are very important. I'm telling you. One is external motivation. एक है external motivation जो बाहर से आता है। जो बाहर से आता है, जैसे मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, आपके अंदर वो आग भड़क रही है, आप बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, आपको लगता है कि आज तो दुनिया हिला डालूंगा मैं, आज आप वॉरियर जैसा फील कर रहे हो, दैट्स एक्सटर्नल मोटिवेशन। व्हेन समबडी कम्स एंड टेल्स यू समथिंग टू डू समथिंग एंड यू फील मोटिवेटेड, दैट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन। एंड another one is internal motivation. Internal, that comes from inside. Nobody tells you to do something and you do it. That comes from inside. So let's go ahead, let's understand what are the two types of मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन एंड इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। जो बाहर से आने वाला मोटिवेशन है, बाहर से हमको मिलता है, हमारे अंदर नहीं आता है वो मोटिवेशन, अंदर से नहीं आ रहा है, बाहर से आ रहा है, दैट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन। और एक्सटर्नली आपको मोटिवेट करने वाली चीजें कौन सी होती है? वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, वन ऑफ द थिंग्स दैट मोटिवेट यू एक्सटर्नली इज मनी, पैसे का लालच। पैसे का लालच। व्हेन समबडी गिव्स यू, like somebody tells you that I will give you this much money to do something and you will be ready to do that. If I pay for something, अगर मैं आपको किसी चीज के लिए पैसा देता हूँ कि ये काम आपको करना है, you will be inspired to do it, you will be motivated. Like बहुत सारा पैसा दिया जाए आपको छोटा सा काम करने के लिए, you will feel हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, बिल्कुल, चाहे कोई भी दुनिया की प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन अगर आपको बहुत सारा पैसा उसके लिए मिलता है तो वी फील मोटिवेटेड समहाउ। आई टेल यू कि आप में से कितने लोग हैं कि जो मतलब दिन भर किसी के यहाँ फ्री में काम करना चाहेंगे? कितने लोग हैं? अपने लाइफ का एक महीना भी आप किसी के फ्री में काम करना चाहोगे क्या? नहीं करना चाहेंगे। सो मनी इज समथिंग दैट मोटिवेट्स अस। मनी इज समथिंग दैट मोटिवेट्स अस। पैसा आपको मोटिवेट करता है। वन ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट मोटिवेट्स यू इज मनी। When people offer you money for doing something and you are well paid, आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हो जो well paid है, आप संतुष्ट हो, जितना पैसा आपको उस जॉब के लिए दिया जा रहा है, उस जॉब को करते हुए आपको जो पैसा दिया जा रहा है, उस पैसे से आप संतुष्ट हो, you will be motivated, you will be happy, you will be driven to work and you will feel like working hard. आप मेहनत करने की इच्छा रखोगे। When you are well paid, when you have a well paid job, आपको पैसा दिया जा रहा है, sufficient पैसा आपके काम के लिए आपको दिया जा रहा है, you will feel motivated. There is no reason that you will not feel, and you know that कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मुझे ये पैसा नहीं मिलने वाला है. So you are driven by the money. You are driven by the money. The factor that motivates you, the factor that keeps motivating you is money. One of the factors, money. पैसा दिया जाएगा, आप काम करोगे, और उसी काम को करने के लिए आपको थोड़ा मतलब जितना देना चाहिए उतना नहीं दिया जाता है. सपोज आप कोई जॉब कर रहे हो जहां आपको सफिशिएंट सैलरी नहीं दी जाती, आपकी सैलरी आपको थोड़ी सी कम दी जाती है, तो यू विल फील लाइक डीमोटिवेटेड. आपको इच्छा, आपका मन नहीं करेगा काम करने का, आपको लगेगा यार मुझे जितना पैसा चाहिए उतना मुझे मिल नहीं रहा है. सो मनी इज वन ऑफ द फैक्टर्स. द सेकेंड फैक्टर आई एम टेलिंग यू, सोशल अप्रूवल. सोशल अप्रूवल यानी कि आप कुछ काम कर रहे हो और उसको समाज में बहुत मान सम्मान दिया जाता है. उस काम को आप कोई काम कर रहे हो और उस काम के लिए समाज में आपकी बहुत प्रतिष्ठा है, उसके लिए आपको बहुत मान सम्मान मिलता है जो भी काम आप कर रहे हो. जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे समाज सेवक आपने देखे होंगे जो कोई बहुत अच्छा काम करता है, जैसे कोई पेड़ लगाता है बहुत सारे, या फिर वो कोई वृद्धाश्रम खोलता है, या फिर अनाथ बच्चों के लिए वो कुछ कर जाता है. तो ये वाला जो काम है यहाँ समाज में इसको बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा दी जाती है ऐसे कामों को. तो ये एक सोशल अप्रूवल जो होता है, इसकी वजह से कुछ लोग मोटिवेटेड होते हैं कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ और समाज से मुझे बहुत सारा अप्रिसिएशन मिलता है इस काम के लिए, तो वो लोग उस काम को करना चाहते हैं. मनी, पैसा वैसा वो नहीं चाहिए उनको, कुछ लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं. तो बेस्ट एग्जाम्पल इसका मैं आपको दूंगा दशरथ मांझी.
दशरथ मांझी, एक्चुअली उसका मोटिवेशन कुछ और था। उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी ना, जो प्रॉब्लम्स आई थी उसके लाइफ में, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसके वाइफ को अपने गांव से उसको हॉस्पिटल ले जाना था और बीच में एक पहाड़ था जिसकी वजह से वो रास्ता बहुत लंबा हो जाता था उसके गांव से शहर तक। तो इस वजह से वो अपनी वाइफ को वहाँ तक नहीं ले जा पाया और उसकी वाइफ रास्ते में ही मर चुकी थी, जिसकी वजह से उसने सोच लिया था कि इस पहाड़ को तो मैं एक दिन काट के रहूँगा। उसने उस पहाड़ को अकेले दशरथ मांझी ने उस पहाड़ के 2 टुकड़े करके बीच में से रास्ता निकाला। आज भी वो रास्ता है और उसको दशरथ पथ नाम से जाना जाता है। सो दैट फैक्टर वाज लाइक, समाज में उसको प्रतिष्ठा नहीं थी, बट ही डिड इट फॉर सोसाइटी के लिए उसने किया। उसका तो बहुत कुछ खो चुका था वो, अब उसने जो किया वो समाज के लिए किया था। सो दिस वाज वन ऑफ द मोटिवेशन, वो उस मोटिवेशन से ड्रिवन था। ही डिड इट बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। ही लॉस्ट हिज नियर वन, he lost his wife, but he did not want others to lose their family members, so he did for the whole village. He did something for the whole village, and now he is very successful. So one of the factors is money, second is social approval, and the third one is fame. नाम, शोहरत जिसको हम बोलते हैं, बहुत लोग आप फेमस हो जाते हो। फॉर एग्जांपल, आप कुछ कर रहे हो जिसकी वजह से आप फेमस हो जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इंस्टाग्राम के ऊपर में लाइव शोज करना या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर में वीडियोस या रील्स बना करके डाल देना, जिसकी वजह से आप फेमस हो चुके हो। एंड देन आपको फिर उसके बाद मोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप खुद उन चीज़ों को करते जाओगे एवरीडे, है ना। आपको अगर कोई मूवी में काम दिया जाए, आप एक्टर बन चुके हो, एक्टर बनने के बाद आपने एक मूवी में काम किया, मूवी हिट हो जाती है। वंस दैट मूवी गेट्स हिट, एक बार वो मूवी हिट हो जाती है, यू गेट फेम, आपको नाम मिल जाता है, आप फेमस हो जाते हो। फेमस होने के बाद अब आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि भैया तुमको अगर मूवी में काम करना, जब जल्दी उठना पड़ेगा, एक्टिंग की प्रैक्टिस करना होगा, डायलॉग्स प्रैक्टिस करने होंगे, रीटेक्स लेने होंगे, फेल हो गए फिर भी ट्राई करना होगा, और फिर फैंस को खुश रखना होगा। ये सारी चीज़ें आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद कर जाओगे, बिकॉज यू हैव गॉट दैट फेम। आपको वो फेम मिला है, अब उस फेम को आप खोना नहीं चाहते हो, फेमस हो चुके हो, उसको आप खोना नहीं चाहते हो। तो एक फेम, नाम हासिल करने के लिए कुछ लोग बड़े बड़े काम कर जाते हैं, उनको नाम हासिल करना होता है, उनको पैसा नहीं चाहिए होता है, उनको कोई समाज में प्रतिष्ठा नहीं, उनको नाम हासिल, फेमस बनना होता है उनको। दैट्स व्हाई दे डू सम थिंग्स। So this is one of the factors that keep you motivating. It is one of the external factors, money, social approval, and the third one is fame. Fame हासिल करने के लिए आप motivated feel कर सकते हो. And the last one is appreciation. Like for example, external factors I am telling you, appreciation, कि आपने कुछ तो भी काम किया, इसके बाद आपकी तारीफ की गई। आपने सपोज हमारे यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स आपने किया, उसमें आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, एंड ऑफ द कोर्स आपको मैं एक अवार्ड देता हूँ, सब लोगों के सामने आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपके लिए लोग तालियां बजाते हैं, आप सामने जा करके आपको अवार्ड दे करके सम्मानित किया जाता है, आपके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है 12th की एग्जाम्स में, 10th की एग्जाम्स में, या फिर कोई डिग्री हासिल करते वक्त। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात करते हैं कि नीरज चोपड़ा ने जो अभी गोल्ड मेडल इंडिया को जिताया है, उसकी वजह से उनको जो सम्मान मिलेगा, वो सम्मान उनको दिया जाएगा, उनको अप्रिशिएट, पूरी दुनिया उनको अप्रिशिएट कर रही है। जहां वहाँ लोग उनके स्टेटस लगा रहे हैं, मोबाइल्स पे देखोगे तो उन्हीं का नाम चल रहा है, न्यूज़पेपर में उन्हीं का नाम चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है उनको एक अप्रिसिएशन मिल रहा है, उसके बाद बहुत सारा अप्रिसिएशन मिलता है। और अप्रिसिएशन जब आपको मिलता है तो आप मोटिवेटेड फील करते हो। आपके काम के प्रति अगर आपको अप्रिसिएशन दिया जाए, आपके काम के प्रति अगर आपको अप्रिसिएशन दिया जाए तो आप मोटिवेटेड फील करते हो। अगर आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, आपने बहुत किया, किसी के लिए बहुत सारा काम आपने किया है, जहाँ भी आप सपोज फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हो या फिर आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो, बहुत मेहनत करके आप अच्छे मार्क्स हासिल करते हो, और उसके बाद आपके टीचर्स यदि आपको अप्रिशिएट नहीं करते या आपके पेरेंट्स आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो यू विल फील डीमोटिवेटेड। एंड अगर आपको अप्रिसिएशन मिलता है, चाहे आपने बहुत अच्छे मार्क्स नहीं लिए हो, सिर्फ आप पास हुए होंगे, बाउंड्री पे पास हुए होंगे, फिर भी अगर आपको अप्रिशिएट किया जाता है कि बेटा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तुमने किया है, अभी आप पास हुए हो, अगली बार और मेहनत करना और थोड़े अच्छे मार्क्स लाना, तो यू विल फील लाइक अप्रिशिएटेड एंड नेक्स्ट टाइम यू विल बी मोटिवेटेड। अगली बार आप मोटिवेटेड रहोगे और बेहतर परफॉर्मेंस आप करने की कोशिश करोगे। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स जो आपको एक्सटर्नली मोटिवेट करता है, एक्सटर्नली। एंड वन मोर आई वांट टू टेल यू, जो मैं मेंशन करना यहाँ भूल गया, नेक्स्ट वन इज फियर। एक और मोटिवेशन है फियर, डर एक मोटिवेशन है। लेट मी टेल यू, दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल थिंग्स। एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको बताऊँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका मेरे पास में है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पीछे एक कुत्ता दौड़ा दिया जाए, एक बहुत खूंखार कुत्ता आपके पीछे दौड़ा दिया जाए और आपको बोला जाए कि भागो, कुत्ता आपके पीछे लगा, आप आगे भाग रहे हो। नाउ आई टेल यू, जब वो कुत्ता आपके पीछे दौड़ रहा है तो आप में इतनी पावर होगी, इतना आप मोटिवेटेड रहोगे, मोटिवेटेड यानी कि वो डर की वजह से आप मोटिवेटेड रहोगे, इतना तेज आप दौड़ोगे कि वो शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दे।
स्प्रिंट का वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब फास्टेस्ट रनिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आप तोड़ जाओ, इतना भी आप मोटिवेटेड हो सकते हो उस डर के मारे। डर के मारे भी ऐसी चीज़ें आप कर जाओगे जो शायद आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि मैंने कर दिया। इट वॉज बिकॉज ऑफ फियर। तो डर के मारे भी लोग मोटिवेटेड रहते हैं। अनदर एग्जाम्पल आपको, और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे एक जंगल में शेर हिरन का शिकार कर रहा हो। आपने कई किस्से, कई वीडियोस ऐसे देखे होंगे जहां शिकारी शिकार के पीछे दौड़ रहा है, कोई शेर किसी जानवर के पीछे दौड़ रहा है, वो जानवर आगे चल रहा है और कई बार वो बच जाता है, वो जानवर बच जाता है। जो फास्टेस्ट दौड़ने वाले चीते जैसे जानवर को हिरन चकमा दे जाता है, देखा होगा आपने। क्योंकि शिकारी दौड़ रहा है अपने खाने के लिए, भूख मिटाने के लिए, और शिकार दौड़ रहा है अपनी जान बचाने के लिए। तो कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि शिकार जो है वो आउटस्मार्ट कर जाता है, उससे ज़्यादा तेज दौड़ जाता है या उसको चकमा देकर के निकल जाता है कई बार वो शिकार भी। द सेम वे जब आप डरे हुए रहते हो तो कई बार आप ऐसा काम कर जाते हो जो आपके अपोनेंट भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं बता दूं कि हमेशा हमको अगर डर की आदत पड़ जाए ना, तो फिर आपको पहले छोटी लाठी से डराया जाता था, फिर आपका डर खत्म हो जाएगा, फिर बड़ी लाठी ला करके आपको मार पीट के काम करवाना पड़ेगा। सो इट्स नॉट दैट यूजफुल, है ना, इट्स नॉट दैट यूजफुल। तो ये डर वाला जो मोटिवेशन है ना, ये टेम्पररी होता है, ये एक पल के लिए रहेगा। तो आपने कई ऐसे बच्चे देखे होंगे बिगड़े हुए जो अपने माँ बाप सामने रहते हैं तो डर के मारे वो जैसा माँ बाप बोलते हैं वैसा करते हैं, लेकिन जिस दिन माँ बाप घर में नहीं रहेंगे उस दिन ये पूरे गली को सिर पे उठा लेंगे। तो ये वाला जो मोटिवेशन है इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। डर के मारे जो है, इनको डर नहीं रहेगा तो फिर ये कुछ नहीं करते। जो डर के मारे मोटिवेटेड है ना, ये डर नहीं रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे अपनी एक जगह शांति से, और जैसे ही डर आएगा तो फिर वो एक्टिव हो जाएंगे, टेम्पररीली बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, और बाद में डर चला जाए तो फिर वो नॉर्मल हो जाएंगे। तो ऐसा वाला मोटिवेशन कोई काम का नहीं है। इसका एक और एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल्स मेरे पास थे, एक और मैं बताता हूँ। जो आपने देखा होगा बड़े बड़े जो मॉन्यूमेंट्स है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, अपना इतिहास हमको सिखाता है कि ताजमहल जैसे मॉन्यूमेंट्स या पिरामिड्स जैसे मॉन्यूमेंट जो है ये गुलामों ने बनाए हुए हैं, गुलामों ने बनाया है, गुलाम ने बनाया। और इनको डर रहता था कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनको लाठी पड़ेगी, इनको मार पड़ेगी, इनको डांट पड़ेगी, इनको मार दिया जाएगा, इनके हाथ काट दिए जाएंगे, सिर काट दिया जाएगा। ये सारे डर की वजह से उनको काम करना पड़ता था, इसकी वजह से उनको काम करना पड़ता था। कई बार उनको सजा मिलती थी अगर वो काम नहीं करते। और फिर उन्होंने इतिहास खड़ा कर दिया यार, आज दुनिया जानती है, ताजमहल को दुनिया जानती है, आज पूरी दुनिया जानती है, पिरामिड्स को, ऐसी ऐसी चीजें इन्होंने बना दी। किन्होंने? गुलामों ने। क्यों बनाई? डर के मारे। क्यों बनाई? डर के मारे। अगर डर ना होता तो उन्होंने वो काम न किया होता। अगर उनको डर ना होता, उनको डराया नहीं जाता, धमकाया नहीं जाता, तो उन्होंने वो काम नहीं किया होता। सो द सेम वे, अगर आपको डर होता है किसी चीज को खोने का या किसी चीज से आपको परेशानी हो जाएगी, उस चीज का आपको डर है, तो आप मोटिवेटेड होकर के काम करोगे, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। सो लेट्स गो अहेड। 5 प्रकार मैंने आपको बताया, एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट मोटिवेट यू। 5 एक्सटर्नल फैक्टर्स मैंने आपको बताया जो आपको मोटिवेट करते हैं। मनी, सोशल अप्रूवल, फेम, अप्रिसिएशन, एंड द 5th वन वाज फियर, डर। ओके, सो फियर इन द राइट डायरेक्शन, नाइस कमेंट। लेट मी टेल यू, थोड़ा आगे बढ़ता है अभी। ये एक्सटर्नल फियर जो है ना, एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है, एक्सटर्नल मोटिवेशन, इसमें से कोई भी आपके काम का नहीं है। ये एक्सटर्नल मोटिवेशंस सारे के सारे टेम्पररी है। ये सारी चीजें आपको हासिल करना नहीं है। ना पैसे के लिए काम करना है, ना नाम के लिए काम करना है, ना दौलत शोहरत के लिए काम करना है, ना डर के मारे आपको काम करना है। काम करना है तो कैसे? अभी इंटरनल मोटिवेशन के बारे में हम बात करेंगे, जो परमानेंट होता है। एक बार आप इंटरनली मोटिवेटेड हो जाओगे ना, तो लाइफ में आपको कभी दोबारा किसी और से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कोई दुनिया में डिमोटिवेट करने वाला इंसान आपको रोक नहीं पाएगा जो आप करना चाहते हो वो करने से। तो लर्न दिस इंटरनल मोटिवेशन। ये इंटरनल मोटिवेशन है जो हमको सीखना है। ओके, सो लेट्स सी। पहले जो एक्सटर्नल मोटिवेशन था, इसके कुछ फायदे हम देख लेते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन के फायदे हैं, काम जल्दी हो जाता है। मुश्किल से मुश्किल काम ऐसे लाठी दिखा करके, डंडा दिखा करके करवा लो आप किसी से, कर जाएगा, फट से कर लेगा, है ना। बच्चों को डरा धमका के काम करवा लेते हैं, मुश्किल से मुश्किल काम करवा लिया जा सकता है। कोई कंपनी का मालिक है, अपने एम्प्लॉयज से वो काम करवा लेगा, डरा धमका के किसी भी तरीके से करवाया जा सकता है। तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन का एक फायदा है। दूसरा बेनिफिट है एक्सटर्नल मोटिवेशन का कि परफॉर्मेंस जो है वो शॉर्ट रन के लिए इंप्रूव हो जाता है। परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। जैसे डर दिखाओगे काम अच्छा हो जाएगा, डर दिखाओगे काम अच्छा हो जाएगा, राइट। और ऐसे इसके नुकसान भी है, एक्सटर्नल मोटिवेशन के कुछ नुकसान भी है। वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस इज कि ये परमानेंटली नहीं रहता है। मतलब डराओ धमकाओ, जब तक डराओगे धमकाओगे काम होता रहेगा, या पैसे का लालच दो तब तक काम होगा। भैया 1 लाख रुपए दो, हाँ ठीक है ठीक है, पैसा दे दो, उसके बाद वो काम ही नहीं करता है।
ऐसा भी आपने कई बार, ऐसी कई डील्स आपने देखी यार, पैसे के लिए पैसे तो पहले ले लिए और बड़ा एनर्जी से काम कर रहा था, जैसे ही पैसा दिया उसने काम ही नहीं, एडवांस ले लिया, काम ही नहीं किया। ऐसे भी बहुत सारे किस्से होते हैं। तो ये टेम्पररी है, जब तक वो एक्सटर्नल फैक्टर है तब तक ही लोग मोटिवेटेड है। जब वो एक्सटर्नल फैक्टर नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा, फायदा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, वो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, फिर आप काम नहीं करोगे, राइट। अनदर थिंग इज, ज्यादा देर तक अगर किसी को डराया जाए या ज्यादा देर तक किसी को बोले तेरे को पैसे दे रहा हूं, तेरे को काम करना ही पड़ेगा, तेरे को पैसे दे रहा हूं, तेरे को काम करना ही पड़ेगा, करना ही, तो एक पल ऐसा आएगा कि उसको स्ट्रेस हो जाएगा कि नहीं यार इतना पैसा दे रहा है, लेकिन पैसा देके जो काम मैं कर रहा हूं ना मुझे मजा नहीं आ रहा है। तो काम पैसे के लिए हो रहा था, इतना सारा पैसा बाहर से मिल रहा है, पैसे के लिए वो काम कर रहा है, उसको खुशी नहीं है उस काम को करने में, तो कितना भी पैसा दोगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसका उस काम से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, उसको तनाव आना शुरू हो जाएगा, काम में वो इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा और फिर आदत पड़ जाएगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्सटर्नल मोटिवेशन का, आदत पड़ जाएगी। एक बार छोटे बच्चे को आप लालच दो कि बेटा ये चीज़ यहाँ से उठा के वहाँ रख दो, फिर मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा, अगली बार वो बोलेगा कि मम्मी 2 चॉकलेट दोगे ना तो ही मैं काम करूँगा, राइट। तो दिस इज द थिंग, लालच, आदत पड़ जाएगी। मनी, पैसे के लिए काम करते हो, आपको आदत पड़ जाएगी, पैसा मिलेगा तो ही काम कर पाओगे, पैसा नहीं मिलेगा तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाओगे। सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर दैट मोटिवेट्स यू। अनदर इज, आपको आदत पड़ने की वजह से फिर आपको अब ज्यादा पैसा चाहिए या फिर आपको ज्यादा डराना पड़ेगा। पहले छोटी स्टिक से आपको डराना पड़ता है, छोटी लकड़ी से आपका काम हो जाता है, एक छोटा सा एक डंडा मारा तो काम कर लेते हैं, बाद में 10-10 छड़ियां हमने टीचर्स की खाली फिर भी हमारा काम नहीं होता है। 10-10 छड़ियां हमने टीचर्स की खाली फिर भी हम काम नहीं करते, ऐसा बहुत बार हुआ हमारे लाइफ में। सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल मोटिवेशन व्हेन मोटिवेशनल कम्स फ्रॉम आउटसाइड। नाउ let's talk about internal motivation, जो अंदर से आता है, जो आग है ना, किसी ने बीच में कमेंट डाली थी आग जलती हुई, वो अंदर से होनी चाहिए। Once you have that motivation, internal motivation जब आपके अंदर होगा, you will be motivated forever. You will be motivated forever. So let's see. One of the factors that motivates you internally is belief. विश्वास, faith. I talked about this in the last session also. Once again I'm talking about it. जब आपके अंदर विश्वास होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, बड़े से बड़ा काम कर जाओगे आप, बड़े से बड़ा काम आप कर जाओगे जब आपका किसी चीज़ में विश्वास होता है। जैसे इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। थाईलैंड में लोग बाम्बू की लकड़ियों से अपने गाल में छेद करते हैं, उनका बिलीफ है, उनको लगता है भगवान खुश हो जाएंगे ये करने से, उनका विश्वास है भगवान में, उनको लगता है भगवान खुश हो जाएंगे, मेरी लाइफ सुधर जाएगी अगर मैं ये करता हूँ, तो ये उनका बिलीफ है। तो वो बाम्बू की लकड़ियों से अपने गाल में छेद करते हैं, कोई लोग कान में छेद करते हैं या फिर कोई और कुछ करता है। हम लोग उपास करते हैं, बहुत कठोर उपास हम लोग, बहुत सारे लोग करते हैं, 9-9 दिन तक कोई भूखा रहता है या और कुछ करते हैं। ये सब क्यों करते हैं हम? विदाउट एनेस्थीशिया लोग अपने गालों में छेद कर देते हैं, विदाउट एनेस्थीशिया। ऐसे बहुत सारी हरकतें अपने लोगों को करते हुए देखा होगा। और उनके अंदर इतना मोटिवेशन कैसे, कि इतनी तकलीफ बिना एनेस्थीशिया वो बर्दाश्त कैसे कर जाते हैं? इट्स बिकॉज ऑफ देयर बिलीफ। उनका विश्वास है, उनके भगवान में उनका विश्वास है, और उनको लगता है कि ये करने से भगवान खुश हो जाएंगे या नाराज हो जाएंगे। तो वो ऐसी ऐसी चीजें करते हैं जो शायद आमतौर पर आदमी नहीं कर पाएगा, उस विश्वास की वजह से हम कर जाते हैं। कई बार आपने पिछले इसमें फिर और एक एग्जांपल मैंने दिया था, कुछ रिलीजियस सेरेमनीज हमारे भारत भर में कई जगह ऐसी होती है जहां लोग जलते हुए कोयले के ऊपर में चलकर जाते हैं। क्या चीज है जो उनको वो करवाती है? वो होता है उनका बिलीफ, विश्वास, भगवान के ऊपर उनका विश्वास है, इसलिए वो करता है भगवान को खुश करने के लिए। वो एक बिलीफ है जो इंटरनली आया, उनको बोलने की जरूरत नहीं, उनको लालच देने की जरूरत नहीं, उनको डराने की जरूरत नहीं है, उनका बिलीफ है, वो करते हैं, खुशी से करते हैं, और उसके बाद में उनको संतुष्टता मिलती है, खुश रहता है कि मैंने ये काम किया, राइट। अनदर इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहला वाला मैंने आपको बताया, बिलीफ, विश्वास की वजह से लोग कर जाते हैं। तो बहुत से काम हम करते हैं, उस काम के लिए हमारा मोटिवेशन हाई रहता है एकदम, है ना। अमरनाथ की यात्रा पे कोई जाता है, कितनी कठिन यात्रा लोग कर लेते हैं, पैदल कई किलोमीटर तक लोग चल लेते हैं, ये सारी चीज़ें। कोई पालकी में जाता है, कहीं तक पंढरपुर तक जाता है, शेगांव की पालकी में अब सैकड़ों लोग हर साल आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं क्योंकि हमारा बिलीफ होता है और हम लोग कर जाते हैं। हमको तकलीफ भी होती है तो भी हम कर जाते हैं, राइट। अनदर वन इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनदर फैक्टर दैट मोटिवेट्स यू इंटरनली। अंदर से आपको मोटिवेट करने वाला दूसरा फैक्टर जो मैं बता रहा हूँ वो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपको पता होता है कि जिम्मेदारी मेरे सिर पे है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पिता होता है ना, उसके ऊपर जिम्मेदारी पूरे घर की है, तो अब उस पिताजी की काम पे जाने की मर्जी होगी या नहीं होगी? वो काम करेगा,
अब उसको मोटिवेशन होगा चाहे नहीं होगा, वो करेगा। उसको मालूम है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरे घर वालों का पेट भरना है मुझे। पूरे लॉकडाउन में ऐसे कई पिता आपने देखे होंगे, कई बाप आपने देखे होंगे जो पुलिस के डंडे खाकर भी अपना काम कर रहे थे, क्योंकि जिम्मेदारी थी उनके सिर पर। उनके सिर पर जिम्मेदारी थी कि अगर वो लाठी नहीं खाते तो अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाते। उनके ऊपर वो जिम्मेदारी थी, उनको वो काम करना ही था। अब उनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, उनको मेरे जैसे किसी आदमी का स्पीच सुनने की जरूरत नहीं कि उठो, बाहर जाओ, काम करो, पैसा कमाओ, बच्चों का पेट भरो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उसको मालूम है मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना है। उसको कोई मोटिवेशनल थॉट की आवश्यकता नहीं है, उसको कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको कोई डर दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा डरने वाला काम भी जिससे आमतौर पे लोग करते हैं, ऐसे ऐसे काम अपने बच्चों का पेट भरने के लिए लोग करते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी उनके सिर पे होती है। उनको मालूम है कि बच्चे का पेट भरना है, बच्चों के लिए, बच्चों की लाइफ सुधारनी है, अपने परिवार को मुझे खुश रखना है, तो वो हर वो काम कर जाएगा जिस काम को करने में भले ही वो अंदर से बहुत डिमोटिवेटेड महसूस कर रहा होगा, भले ही अंदर से उसको डर लग रहा होगा कि आज लॉकडाउन है, मैं बाहर जाऊंगा, मुझे डंडे पड़ेंगे, अंदर से वो डर रहा होगा, अंदर से डिमोटिवेटेड है, अंदर से वो निराश है, अंदर से वो उदास है, लेकिन उसको मालूम है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो उसको जाना ही होगा, उसको जाना ही होगा, और वो करेगा, और उसने किया। ऐसे कई किस्से आपने सुने होंगे, देखे होंगे, हम लोग बैठ करके हमारे घर में देखते हैं, लेकिन उनसे मोटिवेशन हम ले, वो एक्सटर्नल ही होगा, आफ्टर ऑल कोई मतलब नहीं है। हमको इंटरनली हमारी लाइफ की जिम्मेदारी हमको लेनी होगी, है ना। इन द मॉर्निंग समबडी कॉल्ड मी, सर मुझे आपका कोर्स करना है लेकिन मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मैं बोलना चाहता हूं कि आपकी जो उम्र है ना, मैं बता रहा हूं, अगर अपनी लाइफ की जिम्मेदारी इस वक्त अगर आप ले लो, अपने लाइफ की जिम्मेदारी, मैं देखो, मैं इस दुनिया में फ्री तो कुछ नहीं मिलेगा, मुझे भी मेरा घर चलाना है, मैं अपना कोर्स फ्री में नहीं दे पाऊंगा, मुझे माफ कीजिएगा। हाँ, आप जो पैसा दोगे इसके बदले आपको मैं 2 गुना दे सकता हूं, उसके बदले में आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता हूं, ज्यादा मेहनत कर सकता हूं आपके लिए, लेकिन फ्री में पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं होगी। सो आई फील बैड अबाउट देम। मुझे बुरा लगता है, ऐसा नहीं कि मैं आपके दुख को, आपके दर्द को नहीं समझ पाता हूं, लेकिन मैं आपको अपाहिज बनाना नहीं चाहता। मैं बोलता हूं कि जिम्मेदारी उठाओ यार, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टेक। कब तक कॉलेज लाइफ है, माँ बाप के भरोसे कब तक जिएंगे? स्टार्ट अर्निंग। 20, 30, 50 रुपए रोज भी आप कमाते हो ना, भविष्य के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जमा हो जाएगा आपके पास, एक बड़ा बिजनेस शुरू कर दोगे आप। आपकी उम्र जो कुछ भी होगी, जो भी सुन रहा है, सबसे छोटी उम्र का बच्चा यहां हो सकता है कि 15 साल का, और सबसे ज्यादा उम्र का यहां हो सकता है 25 या 30 साल का। सब लोग अगर आज ठान ले कि आज मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा लेता हूं, आज के बाद मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं, कम से कम 50 रुपया मुझसे जो हो पाएगा। देखो, एक अच्छी शुरुआत होती है, 10-20 रुपया भी आप कमाते हो ना, शुरुआत ऐसी ही रहेगी। पहले दिन करोड़पति बनने के बारे में मत सोचना। केबीसी में जाओगे, कौन बनेगा करोड़पति में 2 जवाब नहीं बोल पाओगे और हार जाओगे। तो लॉटरी या फिर और कोई जुआ सट्टा, इन चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना है। 2 वक्त की रोजी रोटी भी कमा पाए ना अब अपनी जिम्मेदारी उठा करके, बहुत खुशी की बात है। और आई एम टेलिंग यू कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाओगे एक दिन। सेल्फ मोटिवेटेड आदमी वही होता है जो जिम्मेदारी अपने सिर पे उठाता है, जिसको जिम्मेदारी होती है। हम लोग हमारी पढ़ाई, हमारा एजुकेशन, हमारा खाना पीना, हमारे कपड़े, इसके लिए हम किसी पे जिम्मेदार है। हमको कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा बताओ? कहाँ से? हमको सब कुछ मिल रहा है और नहीं मिला तो हम उनको ब्लेम करते हैं, मेरे माँ बाप कमा नहीं रहे, मेरे माँ बाप ने मुझे पैसा नहीं दिया इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जिम्मेदारी खुद पे ले लो ना, उठा लो जिम्मेदारी आप। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप पैसा कमा के मुझे ला कर दे दो और मेरा नहीं। आई एम टेलिंग यू, बी सेल्फ मोटिवेटेड, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर ओन शोल्डर्स। अगर पैसा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बन के आज खड़ा है तो कसम खा लो, आज कसम खा लो कि आज के बाद मेरे आने वाली जनरेशन्स को इस पैसे के लिए कोई चीज खोनी नहीं पड़ेगी। ये कसम खा लेना चाहिए आपने। आने वाली 10 जनरेशन्स को पैसे की वजह से, एजुकेशन से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। ये कसम अगर आज आप खा लो ना, तो अपनी भी लाइफ सुधार लोगे, अगली 10 जनरेशन की जिंदगी तुम सुधार लोगे। जब तक आप जिम्मेदारी किसी और पे ढकेल रहे हो तब तक नहीं कर पाओगे। व्हेन यू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप वो जिम्मेदारी ले लेते हो ना, मैं इसके बारे में ज्यादा तीव्रता से बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये बहुत टच करती है चीज की। जब जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है ना, हमको किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, हमको किसी के अप्रिसिएशन की आवश्यकता नहीं है, हमको किसी के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो जाए, लेकिन हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे फैमिली के लिए हम वो चीज कर जाएंगे जो पूरी दुनिया रोक रही है हमको करने से। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, आई थिंक सबसे अच्छा मोटिवेट करने वाला फैक्टर यही है। फिर किसी दीपक शर्मा की या किसी की आवश्यकता नहीं है आपको। फिर
वंस यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर शोल्डर्स, फिर आपको किसी की आवश्यकता नहीं। और यही सबसे मुश्किल होता है, जिम्मेदारी खुद पे ले लेना, यही सबसे मुश्किल चीज है। हम ढूंढते फिर रहे शॉर्टकट, ढूंढते फिर रहे हम शॉर्टकट, किसी किताब में कोई सीक्रेट मिल जाए कामयाबी का, किसी मूवी में कोई सीक्रेट मिल जाए, या फिर कोई सीक्रेट बिजनेस मुझे पता चल जाए। भैया कुछ नहीं है, लोग आपसे पैसा कमाएंगे बोल बोल करके सीक्रेट है सीक्रेट, कुछ सीक्रेट नहीं है, सब कुछ आपके सामने खुला पड़ा है, सब कुछ मालूम है आपको कि जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। देयर इज नो अदर वे। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर ओन शोल्डर्स एंड फिर आप दुनिया को मोटिवेट करोगे, फिर आपको मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर आप दुनिया को मोटिवेट करोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर ये बात नहीं समझ आती है तो देयर इज नथिंग दैट कैन मोटिवेट यू। द नेक्स्ट वन इज प्राइड इन परफॉर्मेंस। प्राइड इन परफॉर्मेंस मतलब कि जो काम आप कर रहे हो उसमें गर्व होना चाहिए आपको, जो काम आप कर रहे हो उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, उसमें आपको गर्व होना चाहिए। पहली चीज, आपको अगर किसी चीज को अपना प्रोफेशन बनाना है 90% लोग मैंने देखे कोई और कुछ तो भी कर रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। उनको अगर पूछा जाए कि आप ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि मेरे दोस्त ने किया है। वो कुछ तो भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके दोस्त ने किया। किसी और को देखा उन्होंने करते हुए, उसको देखा कि वो अच्छा पैसा कमा रहा है, वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसने अच्छा पैसा कमा लिया, इसके जरिए वो भी वही चीज करने लग जाता है, वो भी वही चीज करने लग जाता है। तो टेक प्राइड इन परफॉर्मेंस। पहले अपना करियर जब चॉइस करोगे, कुछ लोगों को अभी करियर चॉइस करने का मौका अभी भी हाथ में है, और इट्स नेवर टू लेट। अभी भी अगर आपको लगता है कि जो काम आप कर रहे हो उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं बता रहा हूं आपकी प्रोडक्टिविटी उस काम में कभी भी अच्छी नहीं रहेगी। उस काम को आज आप छोड़ दो, थोड़ा डर लगेगा, थोड़ा डर लगेगा कि कैसे छोड़ दो यार, अच्छी खासी इनकम हो रही है। देखो, इनकम के लिए काम नहीं करना, पैसे के लिए काम नहीं करना है आपको। आपको काम करना है जिसमें आपको गर्व महसूस हो, ऐसा काम आपको करना चाहिए। एंड वंस यू फाइंड इट, जब आप वो चीज़ समझ लेते हो कि इस काम को करने में मुझे बड़ा मजा आता है, इस काम को करने में मुझे अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, फिर आपको ढूंढना होगा कि इस काम को करते हुए पैसा कैसे कमाया जा सकता है। आपका जो भी इंटरेस्ट होगा, आपका जो कोई भी इंटरेस्ट होगा, उस काम को करते हुए पैसा कैसे कमाया जा सकता है, ये अगर आप समझ लेते हो तो फिर आपको गर्व भी महसूस अपने काम को। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपको मूवीज देखने में इंटरेस्ट है, मोनेटाइज किया जा सकता है। मूवी देखने का शौक है, पिक्चर देखने का शौक है, इसको भी मोनेटाइज किया जा सकता है। ऐसी कई सारी जॉब्स हैं जो आपको मूवीज के अंदर सबटाइटल्स डालने का पैसा देती है। सबटाइटल्स डालने का पैसा, मूवी के नीचे में जो सबटाइटल्स लिख के आते हैं ना, वो आपको डालने का पैसा देती है। ऐसी कई कंपनियां। आपको गाने का शौक है, सिंगिंग का शौक है, भाई सिंगिंग करके पैसा कमा लो तुम, है ना। सिंगिंग करके अपना प्रोफेशन वही चुनो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। अपना प्रोफेशन वही चुनो जिसमें आपको, कोई और इंजीनियरिंग किया, मैं भी किया, किसी और ने MBA किया, मैंने भी किया, कोई और वकील बन गया, मैं भी बन गया था मैं भी वकील बन गया था, कोई और बन गया था, इसलिए मैं डर के मारे बना था वकील। मैं लॉयर बना था डर के मारे, मुझे मैथ से डर लगता था, बन गया मैं लॉयर, राइट। मैं उस काम में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया, मुझे पता था कि मेरे बस की बात नहीं होगी, आई लेफ्ट इट। मैंने वो काम करना चाहिए जिसमें मुझे इंटरेस्ट हो, एंड इफ आई फाइंड इट, अगर मैं वो चीज़ समझ लिया ना कि मुझे किस काम में गर्व महसूस होता है, फिर मुझे कोई अप्रिशिएट करे चाहे नहीं करे। अब कोई मुझे आके बोले कि सर आप बहुत अच्छा भाषण दे रहे हो, भाई कोई जरूरत, थैंक यू, आई एम 100 टाइम्स आई थैंक यू, 1000 बार आपको शुक्रिया करता हूँ। आप जो कमेंट्स दे रहे हो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपको मेरी बात पसंद आ रही है, लेकिन मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आपके अप्रिसिएशन के लिए काम नहीं करना चाहता हूँ कि द पॉइंट ऑफ टाइम मैं अप्रिसिएशन के लिए काम करूंगा और फिर मुझे आपका अप्रिसिएशन अगर ना मिले तो मैं डिमोटिवेटेड हो जाऊंगा। इसलिए मैं किसी के अप्रिसिएशन के लिए काम नहीं करना चाहता। मुझे मजा आता है लोगों को मोटिवेट करने में, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। और ये वाला जो मोटिवेशन रहेगा ना, ये लाइफ लॉन्ग रहेगा। मैं जो कर रहा हूं, मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूं, ये फ्री में कर रहा हूं। मैं जो कर रहा हूं ये मैं नाम के लिए नहीं कर रहा हूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं जो कर रहा हूं ये आपके अप्रिसिएशन के लिए नहीं कर रहा हूं। आप अप्रिशिएट कर रहे हो, ये आपकी महानता है कि आप अप्रिशिएट कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच फॉर द अप्रिसिएशन। लेकिन द पॉइंट ऑफ टाइम हम इन चीज़ों के लिए काम करना शुरू कर दें, जब हम इन चीज़ों के लिए काम करना शुरू कर दें, पैसे के लिए या शोहरत के लिए या फिर अप्रिसिएशन के लिए या फिर डर के मारे, तो हम लोग वो काम ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। आपको वो काम करना होगा जिसमें आपको गर्व महसूस होता हो। इफ़ यू टेक प्राइड इन परफॉर्मेंस देन यू विल नॉट नीड अप्रिसिएशन फ्रॉम समवन। फिर आपको किसी के अप्रिसिएशन की आवश्यकता नहीं होगी। आप खुद सेल्फ ड्रिवन होंगे, आप खुद वो काम करोगे, बल्कि आप दूसरों को मोटिवेट करोगे कि ऐसा करो। फिर आप दूसरों को मोटिवेट करोगे। एंड वन मोर पॉइंट आई वांट टू टेल यू,
कि आप लोग भी और मैं भी, इस दुनिया में हर बंदा, हर आदमी मोटिवेटेड है, ऑलरेडी है। इस बात को हमको मानना पड़ेगा, हमारा माइंडसेट हमको चेंज करना पड़ेगा कि हम मोटिवेटेड नहीं है। वी ऑल आर मोटिवेटेड, सम आर पॉजिटिवली मोटिवेटेड, सम आर निगेटिवली मोटिवेटेड। कुछ लोग पॉजिटिवली मोटिवेटेड है और कुछ लोग निगेटिवली मोटिवेटेड। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा सेशन खत्म होने से पहले। एक गांव में 2 लड़के रहते हैं और उसमें से एक जो है वो एक एडिक्ट है, ड्रग एडिक्ट है, दारू पीता है, घर में मारपीट करता है। और दूसरा है जो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। 2 भाई है, एक बेवड़ा है, घर में जाके मारपीट करता है, पूरे परिवार को परेशान करता है। दूसरा है जो पैसा कमाता है, बिजनेसमैन है, अपने घर को बहुत अच्छा रखता है, खुश रखता है, बच्चों को खुश रखता है, उनकी ज़रूरतें पूरी करता है। और दोनों के माँ बाप एक ही थे, दोनों को एक जैसे माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, दोनों एक जैसे घर में पले बड़े हैं, दोनों एक ही परिवार में रहे हैं, दोनों को एक जैसी ही ट्रीटमेंट मिली है पूरे ज़िंदगी में। अब एक को पूछा जाता है कि तुम ऐसे क्यों हो, तुम क्यों पीते हो, तुम क्यों अपने परिवार को मारपीट करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो? वो बोलता है कि मेरे पिताजी ना बहुत पीते थे, हमको मारपीट करते थे, उन्होंने कभी हमको खुश नहीं रखा, फिर अब मुझसे क्या उम्मीद करते हो? मैं उनके जैसे, जैसा बाप वैसा बेटा रहेगा, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। यही बात जब दूसरे को पूछी गई कि भैया तुम क्यों इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए, कैसे, क्या आपको इंस्पिरेशन मिला? बोलता मेरे पिताजी ना बहुत पीते थे, मेरे पिताजी घर में सबको मारपीट करते थे और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मैंने ठान लिया था कि मुझे इनके जैसा नहीं बनना है। बोथ वर मोटिवेटेड, दोनों को मोटिवेशन मिला था, सोर्स ऑफ मोटिवेशन दोनों का एक ही था, दोनों मोटिवेटेड थे अपने पिताजी से, और उसमें एक ने पॉजिटिवली उस मोटिवेशन को लिया था और वो कुछ अच्छा कर गया अपनी लाइफ में, दूसरे ने उसको नेगेटिवली लिया कि पिताजी जैसे रहेंगे वैसा ही बेटा रहेगा, एक बेवड़ा बन गया, अपने माँ बाप को मारता पीटता है क्योंकि उसके पिताजी वैसे थे, और दूसरा अपने पिताजी वैसे थे, मुझे वैसा नहीं बनना है, इसलिए वो कुछ और कर जा रहा है और वो अपने परिवार को खुश रखता है। अब ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं। कई लोग आपको मिलेंगे जो आज भी पैसा नहीं कमा रहे, जो आज भी अपनी 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पाते, अपने घर परिवार का खर्चा नहीं उठा पाते और वो दुखी जीवन जी रहे हैं, अपने परिवार को दुख दे रहे हैं। उनको रीजन पूछेंगे, बोले गरीबी, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, मोदी, गवर्नमेंट, सिस्टम, एजुकेशन, बहुत सारे रीजन है उनके पास। एट द सेम टाइम कुछ गरीब लोग ऐसे मिलेंगे आपको कि उस गरीबी को उन्होंने पछाड़ करके बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, लाखों लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। उनको जाकर पूछते कि तुम ऐसे क्यों? बोले हम बहुत गरीब थे, एक दिन सोसाइटी में कोई मदद नहीं कर रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट थी, नौकरी नहीं थी मेरे पास और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर मैंने एक दिन छोटा सा बिजनेस शुरू किया और मैंने ठान लिया था कि इस गरीबी को तो मैं हरा के रहूंगा, अपनी अगली 7 जनरेशंस को मैं पैसे की वजह से कोई चीज़ उनकी रुके नहीं, ये मैं कोशिश करूंगा। और उसने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना शुरू किया। जैसे उन्होंने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया तो उसका बिजनेस बढ़ता गया और आज वो करोड़ों का बिजनेस लेके बैठा है। दोनों का सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, दोनों का सोर्स ऑफ मोटिवेशन है गरीबी। कुछ लोगों ने उसको पॉजिटिवली लिया, उस गरीबी को उखाड़ फेंका, कुछ लोगों ने उसको निगेटिवली लिया, बोलते हम गरीब है, गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। नाउ यू सी, आपकी जो हालात है उसकी जिम्मेदारी जिस दिन अपने कंधों पे उठा लोगे ना, जो कुछ भी है हमारी लाइफ, जो कुछ भी है, इसकी जिम्मेदारी जिस दिन हम अपने कंधों पे उठा लेंगे कि मैं ही हूं इसका जिम्मेदार और इसको मैं उखाड़ फेंकूंगा, अपने लाइफ की जिम्मेदारी जिस दिन आप उठा लो, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप में उतनी पावर है कि आप ये कर सकते हो। जो कोई भी लाइफ में नेगेटिव फैक्टर्स आपके होंगे उनको आप पॉजिटिव मोटिवेशन समझ के ले सकते हो और आगे जा सकते हो। So this is the bottom line. The bottom line is the biggest motivator is self-belief. The biggest motivator is self-belief. विश्वास रखिए अपने आप में। जिस दिन आपने जिम्मेदारी ले ली, जिस दिन आपको ये विश्वास हो जाए कि मेरी लाइफ जो कुछ भी है इसका जिम्मेदार मैं हूँ, जिस दिन आपको ये विश्वास हो जाए कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी घटनाएं चल रही है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है, मेरी लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है, मेरी लाइफ में जो कुछ भी होने वाला है, मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है, इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ, ये विश्वास जिस दिन आपको हो जाए, उसके बाद में आप सिर्फ मोटिवेटेड रहोगे नहीं, बल्कि आप दुनिया को रास्ता दिखाओगे, आप एक मोटिवेटर रहोगे।
और ये मोटिवेशनल स्पीकर्स जब मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं ना, तो इनको ये बात मालूम होती है कि मेरे भाषण से इतने लोग, यहाँ 16 पीपल आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, ये 16 पीपल में से, 16 लोगों में से एक भी बंदा अपनी लाइफ में बदलाव महसूस नहीं करेगा इस स्पीच को अटेंड करने के बाद, ये मुझे मालूम है। ये सब टेम्पररी रहेगा। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है आपको, बड़े आप कमेंट्स दे रहे हो, बड़े तालियां बजा रहे हो, बड़े लाइक्स दे रहे हो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बट लेट मी टेल यू, यू विल बी मोटिवेटेड वंस यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर ओन शोल्डर्स। इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको मोटिवेट कर सकती है सिवाय आपके। मैं ये कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इस काम को करने में मजा आता है। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद सेल्फ मोटिवेटेड हूं, अंदर से मुझे लगता है कि मैंने लोगों को रास्ता दिखाना चाहिए। मैंने इस चीज को अपनी लाइफ में निकाल के फेंका है, गरीबी वगैरह ये सारे सिस्टम को। मैं चाहता हूं आप भी कर सको। मैं कितना भी कोशिश करूं ना कि आपको मोटिवेट कर दूं, आपकी लाइफ बदल दूं, नहीं हो पाएगा वो। जब तक आप नहीं करोगे नहीं हो पाएगा, ये मुझे मालूम है, फिर भी मैं कर रहा हूं। एक आखिरी एग्जाम्पल दूंगा और उसके बाद इस स्पीच को हम खत्म करेंगे। एक आदमी एक भैंस के बच्चे को घसीट करके अपनी मां के पास या अपने तबेले में ले जाने की कोशिश कर रहा है। एक आदमी भैंस के एक बच्चे को घसीट के तबेले में ले जाने की, वो भैंसों के बाड़े में ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भैंस का बछड़ा जो है वो हिल ही नहीं रहा, अपनी जगह से चल ही नहीं रहा। बहुत कोशिश कर ली, बहुत धक्के मार लिए, लेकिन वो चल ही नहीं रहा है। उधर से एक छोटी सी बच्ची आती है, उस बच्चे के मुंह में, उस भैंस के बच्चे के मुंह में अपना अंगूठा थमाती है और फिर वो बच्ची आगे आगे चलती है और वो बछड़ा उसके पीछे पीछे जाता है। क्या समझे कि इस दुनिया में कोई भी इंसान कुछ भी अगर कर रहा है तो वो अपनी मर्जी से कर रहा है, वो खुद होके कर रहा है। उससे कोई काम करवाया नहीं जा सकता। आपसे कोई काम मैं नहीं करवा सकता। आप जो कुछ भी करोगे आप खुद करोगे। उस बछड़े का स्वार्थ है, उसको लगा कि अपनी माँ का दूध पीने को मिलेगा, वो चला उसके पीछे। वो सेल्फ ड्रिवन था, वो खुद चल रहा था, इसलिए वो चल रहा था। जब उसको घसीटा जा रहा था वो नहीं चल रहा था। सो अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, देयर इज नथिंग दैट कैन मोटिवेट यू। अब इसको मैं एक पॉजिटिव लाइन के साथ खत्म करना चाहता हूँ, पॉजिटिव एंडिंग हम इसका करना चाहते हैं। वो ये है कि जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा लो। ये विश्वास रखो कि अगर आप जिम्मेदारी उठा लोगे तो आप खुद एक मोटिवेटेड इंसान नहीं, बल्कि आप पूरी दुनिया को मोटिवेट करोगे। गरीबी आपकी दुनिया से नहीं हटेगी, बल्कि आप हजारों लोगों की गरीबी दूर कर पाओगे। प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से नहीं हटेगी, आप दूसरे लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाओगे। Just take the responsibilities on your own shoulders, and once you start taking the responsibilities on your own shoulders, you will be permanently motivated. There will be nothing that can demotivate you. कुछ भी नहीं होगा ऐसा इस दुनिया में जो आपको demotivate कर सके। Thank you very much all of you for staying here till the end. Thank you very much for sparing some time to attend the show, and thank you very much for your valuable comments. Thank you very much for your appreciations, and thanks for watching the show till the end. If you liked it, please put in the comment box once whether you liked it or not. Let me know. Thank you very much. Thanks all of you. Okay then, bye bye. See you soon in the next session. If you want me to deliver, अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप चाहते हो कि मैं अगले लाइव सेशन में उसको डिस्कस करूं या उसके ऊपर मैं आपको कुछ बोलूं, तो कमेंट्स में आप लिख सकते हो कि सर मुझे अगला स्पीच इस टॉपिक पे चाहिए, या ये मेरी प्रॉब्लम है, आप इसके लिए कुछ बोलिए। तो आई विल बी रेडी टू स्पीक अबाउट इट। Thank you very much all of you once again. Bye for now. See you again.